Hello students, I am Lakshmi Advani from Rajdeep School. Today we are going to start our geography portion of standard 10th, social science. So before starting the chapter, we will discuss about the syllabus of geography portion of 10th standard. As we know that for the development of any country, the main thing that is required is resources, and after that we may notice that the sector of economies are main required. So in the 10th standard geography we are going to learn about the resources and the various sectors of economy. And the interesting thing is that in 10th standard geography all the chapters are based on the Indian geography, so it is very easy to learn the chapters and to recall the chapters. You just have to go through my video. All the notes are given over there. Just go through the video, try to understand all the points and recall all the points. No textbook is required if you will learn through video with the full concentration. So without wasting much time, we are going to start our chapter number 8, that is natural resources. First we have to understand what are natural resources, and by the name only we came to know that the resources that we get from the nature can be termed as a natural resources. जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे. वेदर इट इज़ वेजिटेशन, वेदर इट इज़ वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स और एनी थिंग दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर can be termed as a natural resource. And for the development of any country, natural resources are key point. जिस कंट्री के पास में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे उनके पास में मेन सोर्स नहीं है डेवलप करने के लिए. So that is why studying about natural resources of any country is very essential for the development of a country. So now next we will see the definition of resource. Resource is something on which human being is dependent. It means the resource must satisfy any human need. But after that, it is also necessary that human must have a capacity to utilize that resource. Otherwise, that thing will be not counted as resource for human being. For example, we will go through one individual example and after that I will teach you through that example. For example, there are so many books in the library, but you are not touching any of them. And after that, if किसी ने आपसे बोला कि उसमें से कोई एक बुक ऐसी है कि जिसमें से ही सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, सो नाउ यू मस्ट गोइंग टू रन बिफोर दैट बुक. सो दैट इज़ वाई नाउ दैट बुक माइट हैव अ कैपेबिलिटी टू बी योर रिसोर्स. पर जब आप भाग के उस बुक के पास पहुंचते हो और जब आपने बुक खोली तो आपने देखा कि उसके अंदर तो कोई ऐसी लैंग्वेज लिखी है जो आपको पढ़ने ही नहीं आती. It means that you don't have capability to use that book. It means that that book is not useful for you. You are not going to use that book, and that is why that book is not resource for you, just because you don't have capability to utilize them. और वहाँ पे बाकी बहुत सारी बुक है जो आपको पढ़ने आती है बट उनका आपकी एग्ज़ाम के लिए कोई काम नहीं है. इट मीन्स दैट those books don't have ability to satisfy your need. That is why those books are also not resource for you. So that is why for be a resource, a thing must satisfy a human need, and it should be also accessible, and plus human must have capability to use that thing. That is why we can say that before early men have invented fire, fire was not resource for them, because before that discovery they were not knowing anything about the fire. That is why fire was not resource. But after they came to know about fire, and after they came to know that how they can burn the fire, it become the resource. So that is why for be a resource, a thing must have capability to satisfy human need. Human must have capability to use them, then only the thing will be counted as a resource. So the definition of a resource is the thing on which man is dependent, which can satisfy human needs, and if man has physical and intellectual capacity to utilize them, are called resource. So now next we will see about the uses of resource. Resource can be have many uses, and a one resource can be used in a variety of way. So we will see uses of resource one by one. First use of resource is resource as a food.
It means that there are many resources which can be used as a food, cereals, vegetables, or any such product which is edible and which can be eaten can be termed as a category of this use. So whether the good is primary, it means that it is not manufactured like wheat or cereals or any vegetable or fruit that can be eaten raw, can be also termed as a resource as a food, or the manufactured goods also like biscuits or chocolates can also be termed as a resource as a food. Now the next use of resource is resource as energy resources. It means that when something is used in a industries to get a power like electricity or coal or something like that which can give energy, those resources can be termed as resources of energy. For example, if you want to run a vehicle, what will you need? You will need petrol. It means that over there petrol is an energy resource. And the third use of resource as resource as a raw material. We see many industries around us and those industries require some raw material for the production. For example, in a textile industry cotton is used, so over there cotton is a raw material. So resources can be used as food also, resources can be used as raw material also, and resources can be used as energy resources also. So now next we will see that types of resources, and types of resources can be on the basis of many things, like it can be based on the ownership, it can be based on the re-availability, and many categories are there from which we can classify the resource. So first we will go through the types of resources on the basis of ownership. Ownership means that रिसोर्स किसके है, किसके कंट्रोल के अंडर में वो आते हैं, उसके बेस पे हम जो है रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज आर हैविंग three types. First one is individual resource, second one is national resource, and third one is global resource. So by their name we can define them. For example, first one is individual resource. It means the resource which are owned by any individual, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा घर है या मेरी बाइक है या मेरी बुक्स है, तो वो सारे जो है वो इंडिविजुअल रिसोर्स में आएंगी, क्योंकि उनकी ओनरशिप जो है वो मेरे पास है, वो मेरी ओनरशिप के अंडर में है, मेरे कंट्रोल के अंडर में है. सो दैट इज़ वाई दे विल बी टर्म्ड एज इंडिविजुअल रिसोर्स. नाउ सेकेंड वन इज़ नेशनल रिसोर्स. इट मीन्स कि उनकी जो भी ओनरशिप है वो किसी एक कंट्री की गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगी. सो दैट इज़ वाई वो पूरी कंट्री के लिए है, तो उसको हम बोलेंगे नेशनल रिसोर्स. फॉर एग्जांपल कंट्री के अंदर जो भी पब्लिक प्लेसेस है, कंट्री के अंदर जो भी फॉरेस्ट है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसी कंट्री के रिसोर्सेज है. दैट इज़ वाई दे विल बी टर्म्ड एज नेशनल रिसोर्स. एंड द थर्ड वन इज़ ग्लोबल रिसोर्स, जो कि पूरे दुनिया के है, पूरे वर्ल्ड के है, ग्लोबली जिसका कंट्रोल जो है वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू लाइक यूएनओ है उसके थ्रू किया जाता है. जैसे कि ओशन फ्लोर्स जो है या जो ऐसे रेल मिनरल्स जो है वो सारे जो है वो ग्लोबल रिसोर्सेज है, और ये जो है दुनिया की किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ओन किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज on the basis of re-availability. Now what it mean by re-availability? It means that after using that resource, are we going to get it back? Are we going to get it back in a near time, or it will take a long time to available that resource? So re-availability का मतलब है कि एक बार अगर आप उस रिसोर्स को यूज़ करते हो तो फिर नियर फ्यूचर में वो आपको कितनी जल्दी या कितनी ज़्यादा देर के बाद वापस से अवेलेबल होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज आर हैविंग टू टाइप्स, that is renewable resource and non-renewable resource. Now what is renewable resource? So by the name renewable मतलब जो अपने आप को वापस बिल्डअप करने के लिए कैपेबल है, ऐसे रिसोर्सेज जो यूज़ के बाद में तुरंत ही अवेलेबल हो जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट है, एयर है, वाटर है, ये कभी ख़त्म ना होने वाले रिसोर्स है. आपने उसको एक बार यूज़ किया तो आपको मिलियंस ऑफ ईयर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, आप उसको तुरंत दोबारा यूज़ कर सकते हो. सो दिस आर द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एंड, वो आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे, और जो हमारे पास में प्लेंटीफुल अवेलेबल है वो एंड नहीं होंगे, और आप उसको बार बार दोबारा यूज़ कर सकते हो, तुरंत ही वो नियरली ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे. एंड अपोजिट टू दैट वी आर हैविंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि जो अपने आप
को रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो है तुरंत अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। ये रिसोर्स ऐसे हैं जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। सो दैट इज़ वाई यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट ईजिली इन द न्यू ईयर फ्यूचर. You have to wait for millions of years to get it back. So that is why we have to use them wisely. For example, fossil fuels, as we know that millions of years have been taken to form that fossil fuels. So अगर वो ख़त्म हो गए तो अभी उसको वापस से मिलियन ईयर्स लगेंगे बनने के लिए. So that is why we should use them scientifically and we should use them where it is much needed. So on the basis of re-availability, we are having two kinds. One is renewable, which are available automatically after the use, and non-renewable, which will take millions of years if it will get end. So now after that we are going to see the basis of distribution of resources. किस तरीके से जो है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और उसके अकॉर्डिंग उसके काइंड्स जो है वो क्या है. तो उसके अकॉर्डिंग उसके चार जो है हिस्से बनाए गए हैं. फर्स्ट है यूनिवर्सल रिसोर्स, दूसरे है जनरली अवेलेबल रिसोर्स, थर्ड इज़ रेयर रिसोर्स एंड फोर्थ इज़ सोलिटरी रिसोर्स. सो यूनिवर्सल रिसोर्सेज जो है वो ग्लोबली अवेलेबल है, मतलब हर जगह आपको मिलेंगे, हर कहीं पे वो पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, ये ऐसे रिसोर्स है जो कि यूनिवर्सली अवेलेबल है. एयर इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल रिसोर्स, वो हर जगह पे मिल जाता है. और एयर के जो गैसेस है लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट आर ऑल्सो द यूनिवर्सल रिसोर्सेज. Now the generally available resources are those which can be mostly available at all places. जैसे land है, land is a generally available. Why we cannot say that land is a universal resource? Because on the ocean floors land is less, and we know that on the earth only 21% of part is covered with land. So that is why land is a generally available resource. Now third one is rare resources. It means these are the resources which are available only few places of the earth, like thorium or platinum. These are some expensive minerals which are available only few places. And last one is solitary resources. These are the rarest resources because it is available only one or two places of the earth. That is why it is known as the solitary resources. Now next we will see that how we have to conserve the resources and why the conservation of resources is required. Now first we will see what is conservation. What is the meaning of conservation? Conservation का meaning होता है to save. Conservation means to save. जब हम किसी चीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं, उसको सेव करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको कंजर्वेशन बोलते हैं. नाउ द टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. व्हाई वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्स? बिकॉज वी आर नॉट द ओनली ओनर्स ऑफ द रिसोर्स, वी हैव टू सेव देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. सो दैट इज़ व्हाई वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्स. Now the first point is that how we will conserve the resource and what is the definition of conservation of resources. So the first thing is proper management is needed to utilize the resources. If we will use it in an abundant form and if we will use it in where it is not needed, then the resources might be get damaged. And in this era of industrialization we can see that many resources are damaging due to the human needs. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट प्रेजेंट जनरेशन जो है उसको भी रिसोर्सेज मिलने चाहिए और वो इस तरह से यूज़ हो कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाए जा सके, वैसे हमें उसका यूज़ करना है. इसको हम बोलते हैं इन जनरल टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट. अभी भी हम कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करें और फ्यूचर के लिए भी उसको बचा के रखें. बिकॉज बोला जाता है कि जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए हमारे पुरखों की दी हुई धरोहर और हमारे आने वाली पीढ़ी की अमानत है. तो हमें उसे इस तरह से यूज़ करना है कि हमारी नीड्स भी सेटिस्फाई हो और फ्यूचर जनरेशन को भी वो मिले. अदरवाइज़ क्या होगा, हम सारा यूज़ कर लेंगे और वो लोग सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते रह जाएंगे. सो दैट इज़ वाई हमें इस तरीके से यूज़ करने हैं कि हम रिसोर्सेज को उनके लिए भी बचा सकें. एंड नाउ नेक्स्ट,
हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की ओर जाना है। इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं कि आज हमने सब कुछ इंजॉय कर लिया, आज हमारे पास सब है और हमने जो है फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचाया, आज हमने ईद मना ली और फ्यूचर जनरेशन को जो है रोज़े के लिए छोड़ दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें इस तरीके से रिसोर्स का यूज़ करना है कि हम भी हमारी नीड्स भी सेटिस्फाई करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें। जैसे घर में हम सब कुछ शेयर करके यूज़ करते हैं, जब भी कोई नई चीज़ आती है हम अपने भाई बहनों के लिए बचा के रखते हैं। तो इन द सेम वे वी हैव टू सेव द रिसोर्सेज ऑल्सो. Okay, so conservation of resources is very important. It means that we have to save the resources for the future and we don't need to use it for our greed. We have to use it for our need. So now how we will conserve the resource? There are some steps that we can follow for conservation of resources. In that we can see that first what we have to do, फर्स्ट वी हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। और हमें ऐसे भी रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन निकालनी है जो कभी यूज़ नहीं हुए। दोनों की निकालो, जो यूटिलाइज्ड है मतलब जो यूज़ में है एंड जो यूटिलाइज नहीं है। इससे क्या होगा कि जो नॉन यूटिलाइज रिसोर्सेज है उसको हम यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके थ्रू हम यूटिलाइज रिसोर्सेज को रिप्लेस कर सके, जिसकी वजह से हम यूटिलाइज रिसोर्स को सेव कर पाएंगे। सो द फर्स्ट step of conservation is that we have to gather information about available resource, whether it is utilized or whether it is non utilized. Now second, what we have to do is नॉन रिन्यूएबल और रेयर रिसोर्सेज जो है उसको हमें साइंटिफिकली यूज़ करना है। इट मीन्स दैट उनका प्रॉपर यूज़ करना है, उन्हें वेस्ट नहीं करना है। क्यों वेस्ट नहीं करना है? बिकॉज हमें पता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो ऐसे रिसोर्स है जो फ्यूचर में हमें अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। सो दैट इज़ वाई अगर हम अभी उसको ख़त्म कर देंगे तो इन फ्यूचर वी आर नॉट गोइंग टू गेट देम। सो दैट इज़ वाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और रेयर रिसोर्सेज को साइंटिफिकली यूज़ करना है। इट मीन्स कि ऐसे मेथड से यूज़ करें कि जिसके थ्रू या तो उसको रीयूज़ किया जा सके या तो उसको रिसाइकल किया जा सके और उसका कम से कम वेस्ट हो, ताकि उसको हम बार बार यूज़ करते रहे और वो ख़त्म ना हो जाए। नाउ थर्ड इज़ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसे वहीं यूज़ करो वेयर इट इज़ नेसेसरी। अननेसेसरीली उसका यूज़ मत करो। आपको अगर छोटे ही डिस्टेंस पे जाना है तो आप वॉक करके जा सकते हो, दूर जाना है तो पब्लिक व्हीकल का यूज़ करो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू कैरी पर्सनल व्हीकल एवरीवेयर बिकॉज ऑफ दैट वी मे वेस्ट द फ्यूअल। सो दैट इज़ वाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहीं पे उसका यूज़ करें, अदरवाइज़ वो जो है वेस्ट होंगे और ख़त्म हो जाएंगे। नाउ और हमें क्या करना है कि हमें जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए अटेम्प्ट करने हैं, ताकि वो धीरे धीरे करके डेवलप करे और जो है नियरली फ्यूचर में उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बनी रहे, वो एंड ना हो जाए। नेक्स्ट वन इज़ जो लिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्स है हमारे पास उसको हमें कंजर्व करना है। जैसे पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल है, ये सारे जो रिसोर्सेज है ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, तो हमें इसको कंजर्व करना पड़ेगा। नाउ कंजर्व करने के लिए क्या करेगा? हमें पता है कि ह्यूमन बींग जो है वो क्या है, लातों के भूत है। जब तक जो है कोई लॉ नहीं बनेगा तब तक वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। आज अगर जो है ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी होगी तो लोग यहाँ से वहाँ ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेंगे, पर अगर वहाँ पे आप ट्रैफिक सिग्नल लगा दो तो वो ढंग से फॉलो करेंगे, बिकॉज उन्हें पनिशमेंट का डर लगता है। तो ह्यूमन जो है तभी ढंग से काम करते हैं जब उन्हें पनिशमेंट का डर हो। सो दैट इज़ वाई जो लॉज है वो हमें बनाने चाहिए ताकि रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए। अगर पनिशमेंट का डर होगा तो लोग जो है लॉज को ढंग से फॉलो करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ जो चीपली अवेलेबल रिसोर्स है। अभी तो हमने देख लिया कि जो बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होते हैं, जो रिन्यू नहीं हो पाते हैं, उन्हें हमें ढंग से यूज़ करना है। पर जो चीपली अवेलेबल रिसोर्सेज है ये मतलब नहीं है कि उसको हम वेस्ट करते चले जाए या वो जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं तो हम उसको एब्यूडेंट फॉर्म में यूज़ करें। उनको भी हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उन्हें वेस्ट नहीं करेंगे, बचाएंगे, तो वो जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिप्लेस कर पाएंगे। उसके बदले हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उन्हें वेस्ट करने के बदले हमें उसके डेवलपमेंट पे काम करना है ताकि जो है हम रिसोर्स को कंजर्व कर पाए। नाउ
पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टिवेटेड, बिकॉज जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, आप कितना भी बोल लो, मैं कितना भी बोलूँ, कितने भी लॉ बना दिए जाए, पर जब तक लोग नहीं मानते हैं, जब तक लोग नहीं झांकते हैं, तब तक जो है कोई भी चीज़ किसी भी काम की नहीं होती. सो दैट इज़ वाई पब्लिक अवेयरनेस इज़ मस्ट. उसके बिना जो है आप रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं कर पाएंगे. लॉकडाउन में अगर पब्लिक लॉकडाउन नहीं फॉलो करेगी तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की हालत क्या है, आप सब जानते हो. So that is why for anything or any necessary law, public awareness must be there. Now our next point is that soil and soil formation, because soil is an very important resource. soil के ऊपर ही vegetation grow करता है, soil के ऊपर ही वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करती है, soil के ऊपर ही इंडस्ट्रीज ग्रो करती है. जहाँ की सोइल फर्टाइल होगी वहाँ के रिसोर्सेज जो है डेवलप होंगे, वहाँ का वेजिटेशन डेवलप होगा. सो दैट इज़ वाई सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. सो वी हैव टू सी दैट व्हाट इज़ सोइल एंड व्हाट इज़ द सोइल फॉर्मेशन. सोइल जो है बनती कैसे है. तो एज वी हैव लर्न फ्रॉम द junior section that what is soil. Soil is the uppermost layer of the earth crust. It means जो ज़मीन की ऊपरी सतह है उससे हम soil बोलते हैं, जहाँ पे जो है plant grow करते हैं. So the basic definition is that soil is an uppermost layer of the earth crust, but it is the part where the vegetation grow. ये वो हिस्सा है ज़मीन का जहाँ पे plants grow करते हैं. तो वो ऊपरी हिस्सा जहाँ पे plant grow करते हैं, insect survive करते हैं, उसको हम बोलते हैं सोइल. और हमें पता है कि ये सोइल जो है ये कैसे फॉर्म होती है. सोइल के फॉर्म होने में बहुत सारे क्लाइमेटिक एजेंट्स जो है वो वर्क करते हैं. तो पहले अगर मैं आपको इसकी बेसिक प्रोसेस समझाऊं तो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो ड्यू टू क्लाइमेटिक एजेंट्स लाइक रेन है, विंड है, सनलाइट है, इसकी वजह से जो है कमज़ोर होते चले जाते हैं. अगर आपको कोई लगातार बारिश में खड़ा कर दे या आपके ऊपर तेज़ धूप आने लगे, बार बार हवा की मार पड़े, तो आप वीक हो जाओगे, आपकी हेल्थ बिगड़ने लगेगी. तो in the same way we can understand with the rock that because of the climatic condition, because of the rain, because of the air, those rocks get weak and they start broke. वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं. फिर जैसे जैसे टाइम जाएगा वो पेरेंट मटेरियल जो रॉक होगा, जो सबसे बड़ा रॉक होगा, वो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे और बिखरता चला जाएगा. छोटे टुकड़ों में से और छोटे टुकड़े होंगे, उसमें से और छोटे टुकड़े होंगे, और वो किसी एक रिलीफ का फॉर्मेशन करने लगेगा. अगर वो कहीं पे ऐसे एरिया में गिर रहा है जहाँ पे फर्टाइल लैंड है तो प्लेन्स का फॉर्मेशन होगा, या फिर डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा जहाँ पे ड्राई लैंड्स है, या प्लेट्यू का फॉर्मेशन होगा जहाँ पे पेरेंट रॉक मटेरियल जो होगा वो अगर किसी लावा से फॉर्म हुआ है. तो इन द सेम वे जो है आफ्टर द रिलीफ उसमें से जब वो लैंड फॉर्म हो जाएगी तो उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो है वो धीरे धीरे उसमें रहना शुरू करेंगे. हो सकता है कि डेड एंड डिकेड एनिमल्स जो है वो वहाँ पे जो है धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू हो, तो उसकी वजह से ह्यूमस का क्रिएशन होगा जो कि सोइल को और फर्टाइल बनेगा. सो देर आर मेनी things that work in the formation of soil, but basically these things are parent material, climate, organism, relief and time. So soil formed with the broken rocks that broke more further and slowly they make the soil. But remember that it take millions of years to form a thin layer of soil. So that is why we should stop soil pollution and we should not spoil the soil. Now next we are going to see the types of soil. In India basically many types of soils are found and they all soil are having the different characteristics. So we are going to learn the types of soil. First one is alluvial soil, second one is red soil, third one is black soil, fourth one is laterite soil, fifth one is desert soil, sixth mountain soil, forest soil and marshy or peaty soil. So we are going to learn it one by one. First we are going to start with alluvial soil. Alluvial soil we can say that it is more fertile soil. Why? Because alluvial soil जो है वो किससे बनी है आपको पता है? एल्यूवियल सोइल जो रिवर्स अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर के आती है उससे बनी हुई है. तो एल्यूवियल सोइल जो है इंडिया में बहुत लार्ज एरिया कवर करती है. दैट इज़ 43% एरिया ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विद द एल्यूवियल सोइल. एंड ये जो है
जो डिपॉजिट्स लेके आती है रिवर, अपने रिवर आपको पता है जब वो अपर कोर्स से बहती है तो बहुत ही तेज़ी के साथ में बहती है, और इस तेज़ बहाव में वो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है। तो वो सेडिमेंट्स वो अपने मिडल और लोअर कोर्स में जब वो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है तो वो अपनी बैंक पे धीरे धीरे डिपॉजिट करने लगती है। तो ये सेडिमेंट्स के डिपॉजिट के थ्रू जो है एल्यूवियल सोइल बनी है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी फर्टाइल, क्योंकि नदी अपने साथ में बहा के काफ़ी सारे मिनरल्स लेकर के आती है जो कि वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। नाउ यू कैन सी इन द नोट्स दैट alluvial soil contain the more proportion of potash, phosphoric acid and limestone, and it is having the less proportion of nitrogen and humus. यहाँ पे dead and decayed जो insects होते हैं बहुत कम है, that is why humus का proportion यहाँ पे कम है. And the crops that can be grown in this soil is wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize and oilseed. Now we will next see the red soil. रेड सॉइल का जो रेड कलर है वो उसमें फेरिक ऑक्साइड की वजह से है, जिससे उसकी वजह से उसका कलर जो है रेड हो जाता है, और उसी की वजह से जो है उसको रेड सॉइल नाम दिया गया है। ये सॉइल जो है इंडिया का 19% एरिया कवर करती है, और फेरिक ऑक्साइड की वजह से कलर में रेड होती है। जैसे जैसे आप उसमें नीचे नीचे जाओगे तो उसका कलर चेंज होकर के रेड से येलो होता जाएगा। यहाँ पे लाइम, ग्रावेल और कार्बोनेट, ये तीनों चीज़ें जो है इस सॉइल में नहीं पाई जाती है, और फॉस्फेट और नाइट्रोजन, even potash is also less in this type of soil. Millet, cotton, wheat, jowar, linseed, groundnut and potato can be grow in such type of soil. Now third we are going to learn about black soil, which is very fertile, and black soil is formed due to the lava. लावा के बाद में जो रॉक्स जो है वो सूख जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, उसमें से जो है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये इंडिया का 15% एरिया कवर करती है, और ये डेक्कन लावा जो ओल्डन टाइम में जो वोल्केनो हुए थे, वोल्केनो इरप्शन हुआ था, उसके लावा के ठंडे होने के बाद में इस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए बेसिकली ये इंडिया के मिडल पार्ट के बाद में ही पाई जाती है, साउथर्न पार्ट में ज़्यादा पाई जाती है। After that, this soil is having the more proportion of iron, lime, calcium, potash, magnesium and aluminium, and it has capacity to retaining moisture. मतलब moisture को ये कैप्चर कर सकती है, छोड़ सकती है। moisture का आना जाना जो है इस soil में काफ़ी रहता है, that is why it is a very fertile soil. इसमें जो है कई सारे तरीके के crops जो है grow किए जाते हैं। ये सोइल जब ड्राई हो जाती है समर सीजन में तो इसमें फिशर्स हो जाते हैं। नाउ व्हाट वी मीन बाय फिशर्स, मतलब इसके अंदर जो है दरारें पड़ जाती है, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द मॉइस्चर और एयर आउटलेट। एयर अंदर जाती है, बाहर आती है, जिसकी वजह से सोइल में जो है काफ़ी सारी मात्रा में जो है मॉइस्चर आ जाता है, और पहली बारिश की बौछार के साथ ये सोइल बहुत चिपचिपी हो जाती है जब ये टाइम होता है इस सोइल के अंदर सीड्स को बोने का। नाउ नेक्स्ट, कॉटन, लिंसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको, उड़द, ये सारे जो क्रॉप्स है इसमें ग्रो किए जा सकते हैं, बट कॉटन जो है ये बहुत ही यूज़फुल, कॉटन के लिए जो ये सॉइल है बहुत यूज़फुल है, दैट इज़ वाई इस सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। Now next one is laterite soil. Laterite soil is having some similar characteristic like red soil, because इसका कलर भी रेड जैसा होता है, बट लेटराइट जो नाम है वो लेटिन वर्ड से लिया जाता है जिसका मतलब है ब्रिक, मतलब ईंट। ईंट का कलर भी रेड होता है, दैट इज़ वाई इस सोइल का कलर भी रेड है। एंड इन द सेम वे जैसे रेड सोइल में फेरिक ऑक्साइड की वजह से रेड कलर है, इस सोइल में आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर पाया जाता है। जब ये सॉइल वेट होती है तो ये एकदम स्मूथ हो जाती है बटर की तरह, पर जब ये ड्राई हो जाती है तो बहुत हार्ड हो जाती है। ये सॉइल जो है ये क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बनी हुई है। इस सॉइल के अंदर आयरन, पोटाश और एल्यूमिनियम ज़्यादा है, जबकि इसमें कॉटन, पेडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी और कैशू नट जैसे जो है क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। गोवा के अंदर मोस्टली ये सॉइल पाई जाती है, इसीलिए गोवा में जो है कैशू नट का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। Now next we will see the desert soil. Of course from the name only it is clear that desert soil is found in a dry areas, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन कवर नहीं होगा, रेनफॉल बहुत ही कम होगा, ह्यूमस बहुत ही कम होगा। सो इट इज़ फाउंड इन अ एरिड और सेमी एरिड रीजन। एरिड मीन्स कम्प्लीटली ड्राई, सेमी एरिड मीन्स लेस ड्राई। तो जहाँ पे ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो है ये इस टाइप की सोइल पाई जाती है। ये सोइल जो है सैंडी एंड इनफर्टाइल है। सैंडी मीन्स इसमें सैंड पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे, जिसकी
जिसकी वजह से ये वाटर रिटेन नहीं करेगी, मॉइस्चर रिटेन नहीं करेगी, बहुत ही ड्राई करेगी। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्लांट ग्रो नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे डिसॉल्व मिनरल जो है ज़्यादा पाए जाते हैं इस सोइल में। और यहाँ पे मिलेट और जुआर ये दोनों ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको लेस वाटर की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ सम लिटल irrigation in this soil. Now next is mountain soil. With the name only it is clear that this soil might be found in the mountain forest or hilly regions. Now this soil is found in a slopey and valley region of Himalaya at the altitude of 2700 meter to 3000 meter. नाउ ये ऐसी सोइल है जो कि बहुत ही थीन लेयर में और ये अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादातर जो है सीरियल्स वगैरह यहाँ पे ग्रो नहीं किया जा सकता। यहाँ पे पाइन और चीड ट्रीज जैसी कुछ ट्रीज पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी अबाउट forest soil, and this soil is found in the Himalaya only, but it is found on the larger altitude. It means that even from the larger altitude of the mountain soil, it is found on the 3000 meter to 3100 meter in the coniferous forest of the Himalayas. Now next जो है यहाँ पे जो है पूरी सरफेस लीव से कवर हो जाती है, क्योंकि ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे ट्रीज़ है और जहाँ पे लीव्स जो है वो कंटिन्यूसली शेड होते रहते हैं। तो ऊपर की लेयर पूरी जो है लीव्स से कवर हो जाएगी और जो उसका जो पार्ट है नीचे का वो पूरा ब्लैक हो जाएगा ह्यूमस की वजह से, क्योंकि बहुत ही सारे लीव्स, फ्रूट्स, डेड एनिमल्स, इंसेक्ट ये सारे के मिलने की वजह से वहाँ पे ह्यूमस का क्रिएशन हो जाता है। इसके बाद में ये जो है आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वो ब्लैक से ब्लू, रेड ऐसे ऐसे कलर में नीचे कन्वर्ट हो जाती है, जिसका रीज़न भी ह्यूमस ही है। यहाँ पे वीट, मेज, बार्ली, पेडी ऐसे क्रॉप्स भी ग्रो किए जा सकते हैं थ्रू द प्रॉपर एग्रीएशन। नाउ द लास्ट वन इज़ मार्शी और पिटी सॉइल। इसके नाम से हमें पता चल जाता है कि ये मार्शी या पिटी है, मतलब दलदली इलाकों में पाई जाती है और दलदली ज़मीन है। यहाँ पे जो है ज़मीन में पानी का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। इट मीन्स दैट ये ऐसे रीजन में डेवलप होती है जो कि ह्यूमिड रीजन्स होंगे और यहाँ पे बायोटिक एलिमेंट्स का अक्यूमुलेशन होगा। बायोटिक एलिमेंट्स मीन्स दिस डिकेंड प्लांट्स एंड डिकेंड इंसेक्ट, डिकेंग एनिमल, जिसकी वजह से जो सोइल है, एक तो ह्यूमिडिटी, ऊपर से इन सारे एलिमेंट्स की वजह से ये सोइल जो है चिपचिपी हो जाती है, दलदली हो जाती है। जब रेनी सीजन होती है तब बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पूरी लैंड जो है वो वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाती है। और आफ्टर दैट जैसे जैसे पानी कम हो जाएगा तो हमें पता है पेडी के क्रॉप को पहले जो है पेडी प्लांटेशन एग्रीकल्चर का क्रॉप है, उससे पहले ऐसी फील्ड में ग्रो करना पड़ेगा जहाँ पे उसके रूट्स जो है पानी में सबमर्ज रहे, और जैसे ही शेपलिंग ग्रो होगी उसके बाद आप निकाल के उसको दूसरी फील्ड में डाल सकते हैं। सो पेडी कैन बी ग्रो आफ्टर रिसीड्स द वाटर। जब पानी कम हो जाएगा तो आप वहाँ पे पेडी ग्रो कर सकते हो। एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स जो है इस सोइल में पाए जाते हैं और इस सोइल में फॉस्फेट और पोटास ये दोनों कम होते हैं। पर ये सोइल जो है इंडिया में बहुत ही कम एक्सटेंट पे पाई जाती है, बहुत ही लिमिटेड इसका एक्सटेंट है। और इस सोइल का ये सोइल जो है डेल्टा रीजन में भी पाई जाती है। इंडिया में एक बहुत ही ग्रेट डेल्टा रीजन इस सोइल के थ्रू फॉर्म किया हुआ है, दैट इज़ अ सुंदरबन डेल्टा रीजन। वी कैन सी इट इन अ वेस्ट बंगाल। Now next we are going to learn about the soil erosion. The word erosion means something that is get erased. It means that कुछ ऐसा जो कि मिट रहा है। Soil erosion का मतलब होता है जब soil के particles एक जगह से निकल करके किसी दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाए, तो जहाँ से ये पार्टिकल निकल के गए हैं वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि soil erosion हुआ है। So soil erosion means from the one part soil is getting erodes and it is depositing its particle on the another area. So we will go through the definition, that is soil erosion means transportation of land particle from one place to another with the help of moving air and water. पानी या हवा की वजह से जब पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसा ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में होता है जहाँ पे प्लांटेशन कवर बहुत कम हो, क्योंकि प्लांट जो है उसके रूट सोइल को होल्ड करके रखते हैं। पर जहाँ पे प्लांट नहीं होते वो सोइल जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है ऐसे एजेंट के। तो अगर वहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा का बहाव होगा या बहुत ही तेज़ पानी का बहाव होगा
तो वो सोइल के पार्टिकल्स को अपने साथ में लेके जाएगा, और जहाँ पे ये बहाव स्लो होता चला जाएगा वहाँ पे जो है ये पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर वेजिटेशन कवर बढ़ाया ना जाए तो जो डेजर्ट एरियाज है वहाँ पे सोइल इरोजन होने की वजह से डेजर्ट एरियाज इंक्रीज हो सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री इफ द सोइल इरोजन इंक्रीज, बिकॉज इट मे लीड टू द लेस ऑफ फर्टाइल लैंड इन द कंट्री। सो अगर सोइल इरेजन को प्रिवेंट करना है तो हमें क्या क्या मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। सो द फर्स्ट मेजर इज़ कि हमें ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ओवर ग्रेजिंग, एंड फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ ग्रेजिंग। जब लोग अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको घास चराने के लिए ले जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम ग्रेजिंग बोलते हैं। पर कई कई जगह पे क्या होता है, सम लिटल अमाउंट ऑफ ग्रास मस्ट बी रिमेन ऑन द लैंड, बट कई कई जगह पे एनिमल को कंटिन्यूसली इतना ग्रेजिंग कराया जाता है कि वो पूरी लैंड जो है खाली होने लगती है। और अगर वो लैंड पे से ग्रास का पूरा कवर चला जाएगा तो वो जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगी ऐसे क्लाइमेटिक एजेंट से, और वहाँ से जो है सोइल इरोजन होना शुरू होगा। सो वी मस्ट टेक केयर दैट वो लैंड जो है वो पूरी तरीके से ग्रास से खाली नहीं होनी चाहिए। जो ऐसे काउबॉयज़ है जो कि एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जब एक जगह पे कम ग्रास बची हो तो दे शुड स्विच द प्लेस, उन्हें दूसरी प्लेस पे चले जाना चाहिए ताकि ग्रास जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए और सोइल इरोजन ना हो। Now next for is counter method plantation in slopy region. It means कि जो स्लोपी रीजन है, हमें पता है कि स्लोप से अगर आप कोई भी चीज़ फेंकोगे तो उसके नीचे जाने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब सोइल जो है, ऐसी जो सोइल है जो कि स्लोपी रीजन में है, वहाँ पे बारिश वगैरह होगी तो तुरंत ही वहाँ के जो सोइल पार्टिकल्स है वो वाटर की स्पीड के साथ में नीचे की तरफ इरोज होने लगेंगे। तो वहाँ पे अगर आप काउंटर प्लांटेशन अपनाएंगे, मतलब अगर आप सीढ़ियों के आकार में वहाँ पे प्लांट को ग्रो करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ से जो बहने वाला पानी है उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। जब आप स्लाइड पे से फिसलते हो तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, बट अगर आप जब सीढ़ियों से उतरते हो तो इट टेक लिटल एनर्जी एंड इट ऑल्सो स्लो डाउन योर स्पीड। सो इन द सेम वे अगर पानी जो है, रेन वाटर जो है, वो स्पीड से अगर स्लोपी रीजन से बहेगा तो वहाँ की सारी सोइल को बहा के ले जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप सीढ़ियों के आकार में वहाँ पे प्लांट ग्रो कर देंगे तो प्लांट जो है उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से सोइल इरोजन नहीं होगा। नाउ जो फेलो लैंड है, फेलो लैंड मतलब जो आसपास की जगह है जो खाली है वहाँ पे आप क्या करिए, प्लांटेशन कीजिए, ट्रीज प्लांट कर दीजिए, ताकि वो क्या करेगी, एक शेल्टर बेल्ट बनाएगी, सोइल को पकड़ के रखेगी। तो जो भी हवा आएगी तेज़ या फिर जो भी रेन वाटर या कोई भी अगर पानी का तेज़ बहाव आएगा तो सोइल के पार्टिकल्स जो है वो प्लांट के रूट्स के थ्रू कवर हो जाएंगे और वहाँ से जो है इरोज नहीं हो पाएंगे। चेक डैम्स बनाइए, जहाँ पे भी रिवर्स है वहाँ पे डैम्स बनाइए, ताकि अगर फ्लड के थ्रू वाटर ओवरफ्लो होने लगता है तो वो डैम की वजह से जो है वहाँ पे ही रेस्ट्रिक्ट हो जाए, आसपास के फॉरेस्ट एरिया में या सोइली एरिया में ना जाए, अदरवाइज वो फ्लड वाटर की जो स्पीड है वो पूरे सोइल को जो है इरोज करके ले जाएगी। नाउ कल्टिवेट डीपली इन द सोइल। वाई वी हैव टू कल्टिवेट डीपली इन द सोइल? Because if you will cultivate deeply then roots will be grow deeply, and as much roots will be grow in the soil, they will hold the soil particles tightly. तो जैसे ही रूट्स जो है वो सोइल पार्टिकल को टाइटली होल्ड करेंगे तो उससे ज़मीन खोखली नहीं होगी। जब बहुत ज़्यादा पानी भी आएगा तो बिकॉज ऑफ दैट बैरियर ऑफ रूट्स जो सोइल है वो इरोज नहीं हो पाएगी। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर्स दैट if the soil get erodes, how it looks, it become very infertile, and after that it is not suitable for growth of any plant. So that is why we must prevent the soil erosion, and for preventing soil erosion what we have to do, soil conservation. Before also I told you that conservation means to save. So for soil conservation we can give definition totally opposite to soil erosion. तो soil कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा, सोइल को प्रिवेंट करना। जब आप सोइल को सोइल इरोजन से बचाते हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, सोइल कंजर्वेशन कर रहे हैं। सो द डेफिनेशन इज इट मीन्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। अब रिमीडीज, कैसे आप सोइल कंजर्वेशन करेंगे? अगर आपने सोइल इरोजन को प्रिवेंट करने की मेथड देखी है तो आपको सोइल कंजर्वेशन की रिमीडीज ऐसे ही पता होनी चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लांटेशन करना है, क्योंकि
जैसे ही आप प्लांटेशन करोगे तो वो क्या होगा, सोयल के पार्टिकल को होल्ड करके रखेंगी। आफ्टर दैट जो रिवर गोर्जिस है या माउंटेन स्लोप जो है उसके ऊपर आप ट्री को प्लांट करें, ताकि जो है वहाँ से पानी की स्पीड कम हो जाएगी और उसकी वजह से जो है वहाँ पे सोइल इरोजन नहीं होगा। नाउ जो डेजर्ट्स है उसके नियर एरियाज में आप ट्रीज प्लांट कर दें, क्योंकि अगर आप वहाँ पे ट्री प्लांट नहीं करेंगे तो डेजर्ट से होने वाला सोइल इरोजन डेजर्ट एरिया को बढ़ाएगा और जो नियर बाई एरिया डेजर्ट नहीं है वो भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू प्लांट ट्रीज नियर द डेजर्ट एरियाज। नेक्स्ट इज़ फ्लड को कंट्रोल करने के लिए या तो आप वहाँ पे चेक डैम बना दें और या तो एक काम करें कि जो रिवर वाटर है उसको ड्राई लैंड की तरफ डाइवर्ट कर दें। मतलब आप ऐसी कैनल्स बिल्ड करें या ऐसे रोड्स बिल्ड करें या ऐसी वेज बिल्ड करें जिसके थ्रू फ्लड का वाटर जो है वो ड्राई लैंड में जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो सोइल इरोजन नहीं होगा, दूसरा ड्राई लैंड्स जो है उनको वाटर अवेलेबल होगा जो वहाँ पे इरिगेशन के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए काम में आ सकता है। नेक्स्ट है अनरेस्ट्रिक्टेड पार्शरिंग। पार्शरिंग इज अगेन वी कैन से दैट ग्रेजिंग। पार्शरिंग इज ऑल्सो हैविंग द सेम मीनिंग, टू ग्रेज द एनिमल्स। एनिमल्स को जो घास खिलाने ले जाते हैं उसे ही पार्शरिंग कहते हैं। तो जहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड पार्शरिंग है, मतलब जहाँ पे पार्शरिंग अलाउ की गई है वहाँ उसको जो है प्रिवेंट करना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम, जहाँ पे वेजिटेशन कवर नहीं है वहाँ पे जो है सोइल इरोज होती चली जा रही है, जबकि जहाँ पे वेजिटेशन कवर है वहाँ पे रेन जो है वो सोइल पार्टिकल्स को लेके नहीं जा पा रहा, जबकि ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बढ़ेगा क्योंकि रेन जो है वो सोइल के अंदर उतर जाएगा। इन द नेक्स्ट ऑल्सो यू कैन सी दैट shelter belts are there, because of that soil is not getting erodes. counter method is there, because of that slopy area में जो है soil erosion नहीं होगा। थर्ड में आप देख सकते हो कि कैसे कैनल्स बनाई गई है जिसके थ्रू अगर फ्लड आया तो जो वाटर है उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कैसे डेजर्ट के पास में जो है प्लांट किए गए हैं ट्रीज, जिसकी वजह से जो है सोइल इरोजन नहीं होगा और हम सोइल को कंजर्व कर पाएंगे। सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन मैनी थिंग्स, लाइक वी हैव सीन द नेचुरल रिसोर्सेज, we have seen how we can use the resources, we have also seen that why it is necessary to conserve resources, we have seen the formation of soil, erosion of soil and conservation of soil. If you have any doubt you can write in the comment section. Thank you so much.